I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 2 of your class 3 EVS, that is part of the body. So let's begin with this lesson. As you all know, our body works like a machine. It has many parts like eyes, ears, nose, skin, legs and many others. So when you look at yourself in the mirror, you see a beautiful smiling face. जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको क्या दिखता है? एक ब्यूटीफुल सा स्माइलिंग फेस दिखता है. So now looking at the mirror, can you decide which part of your body looks the most attractive to you? So जब आप मिरर में देखते हो तो आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हो कि कौन सी आपकी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पार्ट आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है. यू कैन राइट योर बॉडी पार्ट व्हिच अट्रैक्ट्स यू मोर ओवर हियर. नाउ हियर इज वन एक्टिविटी. Name the parts of the body labels in the picture. There are many parts like this is the eye. This is eyes. This is hair. This is ear. This is the neck. This is chest. This is arms. This is stomach. This is finger. Now this is leg, or you can say thigh. Knee. These are thighs. T-I-G. This is foot. And these are, you can say, these are your legs. Now let's talk about hands. Hands are very much important for our body. Without this we cannot eat, we cannot write, we cannot do many works. So our hands are very important part of our body. They do a lot of work for us. हमारे hands क्या है? बहुत ज़्यादा important part है हमारी body का. ये हमारे लिए बहुत सारा work करते हैं. Now we use our hands to eat food. हम अपने hands को क्यों किस चीज़ में use करते हैं? खाना खाने के लिए use करते हैं. Writing के लिए use करते हैं. Painting के लिए, painting pictures, holding things and various other important things. Now feet. फीट कहाँ यूज होती है? Our feet are very important to us. ये हमारे लिए बहुत ज्यादा important होती है. They help us in walking, running, standing. So they are part of our legs. ये किसका part होती है? feet हमारी legs का part होती है. They help us to move from one place to another. ये हमें एक जगह से दूसरी जगह पे move होने में help करती है. So we can stand, walk and run with the help of our legs and feet. हम खड़े हो सकते हैं, walk कर सकते हैं, run कर सकते हैं. किसकी help से? My feet की help से. Now what else can we do with our feet? और क्या चीजें कर सकते हैं? We can dance, we can jump. Now sense organs, eyes, ears, nose, skin and tongue are our sense organs. Now the organs that help us to feel and sense the things around us are called sense organs. जो organs हमें feel करने में, sense करने में चीजों को help करते हैं, जो हमारे आसपास होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? Sense organs कहते हैं. These are eyes, ears, nose, tongue and skin. क्या क्या हो गया? Eyes हो गई, nose हो गए, tongue हो गए, skin हो गई. Seeing, hearing, smelling, tasting and feeling are the 5 senses. ये क्या है? हमारे 5 senses है that help us to know what is happening around us. जो किस में help करते हैं? जानने में कि हमारे आसपास क्या हो रहा है. Now eyes. Eyes किस में help करती हैं? Our eyes help us to see world around us. हमारी eyes help करती हैं जो हमारे आसपास चीजें उन्हें देखने में. So we see colors with our eyes. हम colors किससे देखते हैं?
अपनी आईज से देखते हैं। We see color with our eyes. हम कलर्स किसके हेल्प से देख पाते हैं? अपनी आईज की हेल्प से देख पाते हैं। We can read a book or watch TV with the help of our eyes. हम बुक्स रीड कर सकते हैं, टीवीज वॉच करते हैं, किसकी हेल्प से? अपनी आईज की हेल्प से। Now our feet cannot take us anywhere without the eyes. हमारी फीट कहीं भी इधर उधर नहीं लेके जा सकती हमारी आईज के बिना। So telling them to, our eyes help us to see and recognize things. हमारी eyes किस में हेल्प करती है? देखने में और recognize करने में चीजों को। All this makes the eyes very important to us. So ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा हमारी eyes हमारे लिए बहुत ज्यादा important होती है। Walking, running, writing हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं? अपनी eyes की हेल्प से कर पाते हैं। Now ears. The ears help us to hear or listen. हमारे ears किस में हेल्प करते हैं? They help us to hear, हमें सुनने में और listen करने में। So they help us to listen to music and many other songs. ये किस में हेल्प करते हैं? हम म्यूजिक सुन सकते हैं और बहुत सारी ट्यून्स होती हैं, बर्ड्स की चिर्पिंग होती है, anybody is calling you, ये सब चीजें साउंड्स हम किसकी हेल्प से सुनते हैं? अपने ईयर्स की हेल्प से सुनते हैं। We can hear the sound of vehicles on roads. हम व्हीकल्स की साउंड हियर करते हैं रोड पे and save ourselves from accidents. और अपने आप को किससे बचाते हैं? एक्सीडेंट से बचाते हैं। We are able to listen to our ears and learn through the teachers. So हम हम अपने कानों से सुनते हैं, तो जो भी टीचर हमें पढ़ाते हैं, like I'm teaching you, तो आप किस वजह से सुन पा रहे हो? You are listening from your ears, so they help you in learning also. Now nose. The nose help us to smell different things. Nose किस में हेल्प करती है? different things को स्मेल करने में हेल्प करती है। Like the fragrance of flowers and the aroma of eatables. जो fragrance होती है flowers की, जो aroma होता है eatables का, उनके किससे आती है? हमें nose से smell आती है। So we also breathe in our air through the nose. It helps us to keep us alive. जो हम inhale करते हैं, oxygen intake करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? nose की हेल्प से करते हैं। So it helps us to keep us alive. ये हमें alive, जिंदा रखते हैं। Now tongue. tongue पे हमारे बहुत सारे taste buds available होते हैं जो हमें different taste देते हैं। So the food you eat is enjoyed not only through its smell but also through its taste. जो भी खाना आप खाते हो वो आप किसकी हेल्प से enjoy कर पाते हो? खाली उसकी स्मेल से तो नहीं कर पाते, उसके टेस्ट से कर पाते हो, मतलब स्मेल भी करते हो, टेस्ट भी करते हो। So the tongue help us to taste various things. tongue किस में हेल्प करती है? बहुत सारी चीजों को टेस्ट करने में हेल्प करती है। The tongue also help us to speak. tongue हमें बोलने में भी हेल्प करती है। So did you know the taste buds on tongue help us to taste different flavors of food like sweet, sour, salty and bitter. जो taste buds available होता है different places पे हमारी tongue पे, तो ये हमें किस में हेल्प करते हैं? हमें हेल्प करते हैं different flavors को taste करने में हेल्प करते हैं, जैसे sweet हो गया, sour हो गया, तो आपका salty हो गया and bitter हो गया। Now skin. Skin help you to feel things. Because of skin you can feel the temperature. Now we feel things with our skin. हम अपनी skin से चीजों को feel करते हैं. This is our sense organ. It tells us if something is if something is not cold, rough or smooth. कोई चीज warm भी है, कोई चीज hot है, हम किसकी वजह से किसकी वजह से sense कर पाते हैं? Skin की help से हम sense कर लेते हैं. Now thus each part of body is equally important. Each one needs the other to complete any task. So हमारी body का हर part बहुत ज़्यादा important होता है और हर किसी को मतलब एक दूसरे की नीड होती है एक टास्क कंप्लीट करने में। We must take care of each part of body. How can we do this? हमें अपने हर पार्ट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और हम इन चीजों को कैसे कर सकते हैं? Like we must wash our hands before touching our eyes. हमें अपने eyes को टच करने से पहले अपने hands को wash करना चाहिए। कभी कभी हमारे इस पे मिर्च लगी हुई होती है तो our eyes will feel irritated. Now clean our tongue after we brush our teeth. हमें जब हम ब्रश कर लेते हैं हमें अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए। बाथ डेली टू कीप आवर स्किन क्लीन। अगर हम अपनी स्किन क्लीन रखनी है, अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करना है, सो हमें डेली बाथ करना चाहिए। Never poke your ears, eyes, nose or ears with any pointed object. कभी भी आपको अपनी eyes को, nose को और ears को किसी भी pointed object से poke नहीं करना चाहिए। Wash our face twice a day. हमें अपना face दिन में 2 बार wash करना चाहिए। Now let's talk about differently able people. कौन होते हैं जिनको कुछ ना कुछ करने में प्रॉब्लम होती है, जो डिफरेंटली एबल होते हैं, किसी के लेग्स प्रॉपर वर्क नहीं करते, किसी के हैंड्स प्रॉपर वर्क नहीं करते।
There are some people who cannot see, hear, speak or walk like everyone else. कुछ लोग होते हैं जो और लोगों की तरह चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वॉक नहीं कर पाते. They are differently able people. ये क्या होते हैं? Differently able people होते हैं. These people have special schools. इन लोगों के special schools होते हैं. Here they are taught to overcome their disability and lead a normal life. यहाँ पे इनको इसलिए पढ़ाया जाता है ओवरकम करने के लिए अपनी डिसेबिलिटी को और नॉर्मल और लोगों की तरह लाइफ जी सके. नाउ पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक, जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, लर्न टू कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेजेस. ये साइन लैंग्वेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. हैव यू सीन इन योर टीवी देयर इज वन एंकर स्पीकिंग एंड देयर इज वन लेडी और एनी मैन हु शोज यू द एक्शन. किसके लिए होता है? जो लोग सुन नहीं पाते, जो लोग बोल नहीं पाते, ये उनके लिए होता है. दे आर ऑल्सो टॉट लिप रीडिंग. इनको क्या पढ़ाया जाता है? लिप रीडिंग पढ़ाया जाता है. so they can understand what others are saying, जिससे ये समझ जाए कि और लोग क्या कह रहे हैं. people who cannot see learn to read using the braille script. जो लोग नहीं देख पाते, जो ब्लाइंड होते हैं, उनकी एक लैंग्वेज होती है, ब्रेले स्क्रिप्ट होती है, वो उसको पढ़ते हैं. नाउ द स्क्रिप्ट हैज रेस्ड डॉट्स इन अ पैटर्न. स्क्रिप्ट में क्या होता है? रेस्ड डॉट्स होती है जिन्हें आप टच करके पता कर सकते हो कि कौन सा लेटर है. नाउ पीपल हु कैन नॉट सी कैन फील द रेस्ड लेटर्स विद देयर फिंगर्स. जो लोग नहीं देख पाते वो रेस्ड लेटर को फील करके अपने हैंड से, फिंगर से पता कर सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या बोल रहे हैं. So people who cannot walk take the help of various walking aids like walking sticks, wheelchairs and crutches. जो लोग वॉक नहीं कर पाते, जिनको लेग्स में प्रॉब्लम होती है, वो क्रचेस की हेल्प लेते हैं, वॉकिंग स्टिक्स की या व्हीलचेयर्स की हेल्प लेते हैं. Now people who cannot see read using braille script. This is a picture of the artificial limbs, and this is the old man is holding the walking stick. This is a picture of the wheelchair, and these are the picture of crutches. Now, if a person loses a limb due to an accident, they are fitted with an artificial limb. तो जो इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, उनको मतलब अपना लेग खो देते हैं, अपना कोई लिम्ब खो देते हैं, तो उनको क्या फिट करा जाता है? एक आर्टिफिशियल लिम्ब फिट करा जाता है. Did you know an artificial foot, the Jaipur foot, was invented by Dr. Pramod Kumar Sethi of Jaipur. जो आर्टिफिशियल फुट होता है, जयपुर फुट होता है, उसको किसने इन्वेंट करा था? डॉक्टर प्रमोद कुमार सेठी ने इन्वेंट करा था, जो जयपुर के थे. सो द आर्टिफिशियल फुट इज बीइंग यूज्ड बाय सुधा चंद्रन. कौन यूज करता है आर्टिफिशियल फुट को? सुधा चंद्रन यूज करती है. वो क्या है? फेमस डांसर है और क्या है? एक्टर है. Children suffering from polio disease learn to walk with the support of calipers. जो चिल्ड्रंस होते हैं जो पोलियो डिजीज से सफर कर रहे होते हैं, वो किसके थ्रू लर्न करते हैं? वॉकिंग. वो किसके थ्रू वॉक करते हैं? कैलिपर्स की सपोर्ट से वॉक करते हैं. डिफरेंटली एबल पीपल नीड आवर लव, रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन. इनको किस चीज की नीड होती है? हमारी लव की, रिस्पेक्ट की और एडमायरेशन की बहुत ज्यादा नीड होती है. They do not need our pity and sympathy. उनको हमारी पिटी नहीं चाहिए होती, सिंपैथी नहीं चाहिए होती. Old age weakens all the senses. जो ओल्ड एज होते हैं वो मतलब हमारे सारे सेंसेस को वीकन कर देती है. So it makes the body weak and frail. हमारी बॉडी को वीक और फ्रेल कर देती है. आपने देखा होगा कभी कभी आपकी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर को सुनने में प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है. तो किस वजह से होता है? ओल्ड एज की वजह से होता है. बॉडी रिएक्शंस become slow too. So जो हमारे बॉडी के रिएक्शंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं. Now we need to understand and be sensitive towards the aged in our homes. तो हमें उन्हें समझना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए और उनसे बहुत सेंसिटिव वे में बात करनी चाहिए. मतलब कि उन्हें कोई भी बात हमारी हर्ट कर सकती है, हमें उनके साथ रूड नहीं होना चाहिए. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a grateful day.